ये है नालंदा होम टेलीविजन। आप देख रहे हैं नालंदा न्यूज। राजगीर स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में आयोजित 3 दिवसीय छठा धम्म सम्मेलन शुरू हो गया। सम्मेलन में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे, जहां वे सबसे पहले विश्वविद्यालय परिसर में पौधारोपण किया। इस मौके पर उनके साथ राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, श्रीलंका के परिवहन मंत्री पवित्र वानियारच्ची के अलावा कुलपति प्रोफेसर सुनैना सिंह, इंडिया फाउंडेशन के निर्देशक ललिता कुमार मंगलम मौजूद थे। सम्मेलन में देश विदेश के कई विद्वान और स्कॉलर शामिल हुए हैं। उपराष्ट्रपति के आगमन को लेकर जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है। उनके द्वारा 3 लेयर में सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय कैंपस में कार्यक्रम स्थल के पास संचार कक्ष की स्थापना की गई है। इसमें संचार के तमाम अति आधुनिक उपकरण रखे गए हैं। हॉटलाइन, एसटीडी, आईएसडी, इंटरनेट, 2 प्रिंटर, फैक्स और वायरलेस सेट रखे गए हैं। कुलपति प्रोफेसर सुनैना सिंह ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में विभिन्न देशों के 200 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। सम्मेलन द्वारा शिक्षा जगत के बुद्धिजीवियों, प्रमुख राजनेताओं और भारत व विदेश के धार्मिक राजनेताओं को एक साझा मंच देगा। इंडिया फाउंडेशन के सहयोग से 3 दिवसीय सम्मेलन 9 नवंबर तक चलेगा। सम्मेलन में इन विषयों पर होगी चर्चा। सम्मेलन में धर्म परंपराएं लोगों की जीवन शैली सुधारने और महामारी के विनाशकारी प्रभाव से उबरने में अहम भूमिका निभाएगी। मानव और प्रकृति के सामंजस्यपूर्ण को ध्यान में रखते हुए कोविड के बाद खुशहाल और स्वस्थ दुनिया बनाने में बड़ी भूमिका निभाएगी। सम्मेलन में स्वास्थ्य, मानव कल्याण, जलवायु परिवर्तन और सामाजिक सद्भाव से संबंधित अन्य विषयों पर भी विचार विमर्श होगा। विश्वविद्यालय में इस समय 30 से अधिक देशों के छात्र पढ़ रहे हैं। From time to time, we must go back to that. So I am happy this 6th Dharma Dhamma conference is being organized on such a theme and aims to facilitate cross-pollination of ideas and foster harmony at the global level. It also seeks to explore shared values of dharmic traditions that may provide the guiding light to the world today. We must remember the vibrant sense of our interconnectedness which informs our dharmic traditions is the need of the hour. Dharma has been a pivotal and pervasive concept and overriding principle in relation to Indian culture and civilization. It has played an important and cardinal role in guiding and shaping our view of reality and way of life. Dharma covers every dimension of human existence and has been life-sustaining, life-regulating and life-enhancing force in our socio-cultural ethos. The notion of Dharma Dhamma in its multiple manifestations, including truth and non-violence, peace and harmony, humanness and spiritual linkages, and universal fraternity and peaceful coexistence, served as a moral compass that guided people in Indian subcontinent through the ages. It is this vital moral impulse that continues to shape and sustain our way of life. I am told that this international conference aims to focus on the essential identity among diverse dharmic traditions, having distinct characteristics and notable commonalities. I have been informed that the conference will have a ministers panel, important people from different states here and also ministers from Sri Lanka. I am certain that the academic deliberations on various sub-themes of this conference over the 3 days will prove to be intellectually enriching and purposeful. I am glad to learn that more than 100 scholars from different parts of the world will present papers
at this international conference with such a vibrant intellectual environment, structured to advance the frontiers of knowledge, I am sure that the Nalanda University will perform its role as an emerging thought leader in the के अवसर पर उपस्थित भारत के आदरणीय उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी, बिहार के महामहिम राज्यपाल श्री फागू चौहान जी, श्रीलंका सरकार की माननीय परिवहन मंत्री श्रीमती पवित्रा देवी वनियारच्ची जी, इंडिया फाउंडेशन के पूर्व निदेशक श्री राम माधव जी, नालंदा विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर सुनैना सिंह जी, बिहार सरकार के माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग श्री श्रवण कुमार जी, इंडिया फाउंडेशन के निदेशक श्रीमती ललिता कुमार मंगलम जी, नालंदा के माननीय सांसद श्री कौशलेंद्र कुमार जी, इंडिया फाउंडेशन के निदेशक श्री ध्रुव कटौत जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, मैं आज के इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और ये राजगीर में ये 6ठा इंटरनेशनल धर्म धम्म कॉन्फ्रेंस जो आयोजित किया गया है, धर्म धम्म ट्रेडिशन इन बिल्डिंग द पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर, इस विषय पर जो चर्चा करने वाले हैं और जो जानकारी मिली है कि 3 दिन तक यहाँ पर चर्चा होगी और सब लोग विभिन्न देशों से भी आकर के सभी जगह के लोग आपस में बातचीत करेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। और इस अवसर पर तो आज तो अभी तो विचार रखा ही लोगों ने, लेकिन अभी जो माननीय उपराष्ट्रपति जी अपनी बात यहाँ पर रखेंगे तो ये बड़ी खुशी की बात है। और हम लोगों के राज्यपाल महोदय भी इसमें अपनी बात रखेंगे। लेकिन जो सबसे खतरनाक चीज हुआ है पूरे दुनिया में, ये जो कोविड की बीमारी फैली है, ये एक विचित्र तरह की बीमारी। अब तो चाहे किसी की उम्र कितनी भी हो, कितने भी बुजुर्ग लोग हों, उनसे पूछा जाता है तो आज तक इस तरह की बीमारी नहीं। अगर कभी कोई इतिहास पढ़िए तो उसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं मिलती कि ऐसी बीमारी कैसे हुई। और ऐसी कोई बीमारी होती है कि पूरे दुनिया में फैला हुआ, ये भी नहीं हो कि दुनिया का कोई राज्य बचा, तो ऐसी स्थिति हुई है, तो यह तो है ही खतरनाक चीज। और इसको लेकर के जितना पूरे दुनिया में अलग अलग राज्य देशों में लोगों ने अपना काम किया, और हम लोगों के देश में तो पूरे तौर पर इसके लिए काम हुआ। प्रधानमंत्री जी का हमेशा गाइडलाइन मिलता रहा, मीटिंग होती रही, हर राज्यों के साथ मीटिंग होती रही, सब लोगों के साथ, अधिकारियों के साथ बातचीत होती रही कि कैसे इसका हम सॉल्यूशन करेंगे, कैसे इसका रास्ता निकालेंगे। तो उस पर तो काम किया गया, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। और सब जगह घटा है, हम लोगों के यहाँ भी बहुत घटा है, लेकिन फिर भी खतरा रहता है। लोग सचेत करके रहते हैं कि 2 राउंड हो गया, तीसरा राउंड कभी भी हो सकता है। तो ये सब ऐसी चीज है कि इन सब चीजों पर तो बिल्कुल बात करना चाहिए, और ये बड़ी चीज है। और ये जो धर्म धम्म सम्मेलन है, इन लोग तो बराबर कर रहे हैं। अब इसके पहले आज तो महामहिम राष्ट्रपति जी आए हैं, और हम तो यहाँ पर शामिल हुए थे 2018 में भी, जब आदरणीय राष्ट्रपति जी को बुलाया था आप लोगों ने, चौथा जो कार्यक्रम था, तो उसमें भी आने का मौका मुझको मिला था। तो अब इस तरह से जो आप लोग कार्यक्रम करेंगे, ये बहुत बड़ी चीज है भाई। इसका सॉल्यूशन कैसे निकले, इसका क्या समाधान हो सकता है। अभी तो इलाज के लिए बहुत तरह की बात होती है, तो आप सब जानते हैं
कि जिस तरह से टीकाकरण की बात होती है, लोगों के जांच की बात होती है, कितना हो रहा है और जो टीकाकरण हो रहा है यहाँ पर कितना हुआ, दुनिया में कहीं इतना हुआ है? इस देश में 100 करोड़ से भी ज्यादा, शायद परसों तक तो 107 करोड़ से भी ज्यादा था, तो और बढ़ा होगा, इतना हुआ। और हम लोगों के बिहार में पहला डोज, मतलब आप समझ लीजिए पहला राउंड 5 करोड़ से भी ज्यादा हुआ और दूसरा राउंड जो टीकाकरण का चल रहा है वो लगभग अब 2 करोड़ के करीब पहुंच रहा है। तो इसके लिए तो बहुत पूरी तैयारी के साथ और सारा सब कुछ किया जा रहा है। और आज के दिन तो खास तौर पर हम लोगों ने बिहार में रखा, अभी 28 तारीख को और फिर आज के दिन भी एक खास कार्यक्रम रखा गया है कि बड़े पैमाने पर टीकाकरण किया जा रहा है। टीकाकरण तो किया जा रहा है, सब भी है, लेकिन फिर भी लोगों को अलर्ट रखा जाता है कि भाई आगे भी कुछ हो जाए। हम लोगों ने यहाँ पर कितना पूरे देश में किया है, राज्यों में किया है, हम लोगों ने भी यहाँ जितना सब कुछ करने की पूरी कोशिश की है। तो ये सब तो इन सब चीज़ों पर आप लोग चर्चा करेंगे। अब ये 2 साल से भी ज़्यादा करीब कोविड का हो गया, तो इसको देखना चाहिए कि आगे कभी इस तरह की बात नहीं हो। लेकिन ये एक गौर करने वाली बात है कि आखिरकार ये क्या चीज़ है। अब आप समझ लीजिए कि ये तो निश्चित रूप से कोई ये नेचुरल नहीं, ये तो नेचुरल नहीं, ये तो बिल्कुल आर्टिफिशियल है। ये नेचुरल तो हो ही नहीं सकता, ये आर्टिफिशियल। और चाइना से इसकी शुरुआत हुई थी और जहां से ये फैला है, कहीं ये कोई सोच नहीं सकता है कि भाई कोई भी चीज पूरे दुनिया में फैल जाएगी। तो निश्चित रूप से ये ऐसा है, इस पर जरूर विचार जो हम लोग कर रहे हैं धर्म सम्मेलन में, गौर करिए कि आखिरकार इसको कैसे, जिस तरह का काम हो रहा है आजकल, अब इसके बाद जो भी होना है पता नहीं पृथ्वी पर क्या संकट आने वाला है। अब इसी तरह की बात आगे भी होगी तो कितना खतरनाक होगा। तो ये सब तो गौर करने वाली चीज है ही है। तो इसलिए तो ये जो चीन का जो वुहान था जहां से ये सब शुरू, तो वहां पर तो अब चाइना का तो पता नहीं चलता है, पता नहीं चलता है चाइना में क्या, तो जितना भूलेगा उतना का पता चलेगा। लेकिन चाइना के बारे में लोगों को कहाँ सूचना मिलती है इतनी कि कहाँ पर क्या हुआ और अभी क्या हो रहा है कौन जानता है। लेकिन वहीं से शुरू हुआ और सारे दुनिया में फैल गया। तो इसलिए इन सब चीज़ों पर तो हम लोगों को पूरे तौर पर करना चाहिए। और बहुत बड़ी चीज़ है कि जो कोविड टीकाकरण की शुरुआत आप सब लोग जानते हैं, इसी साल जो शुरू किया गया 16 तारीख जनवरी को, और तब से जितना हमने चर्चा की कितना किया जा रहा है। तो ये सब तो काम किया ही जा रहा है, लेकिन इस पर देखना बहुत ज़रूरी है और इन सब चीज़ों पर आप गौर करिएगा और हमको पूरा भरोसा है कि ये होगा। और आप लोगों ने जो चयन किया है कि इसको हमेशा आप नालंदा में इस बात के लिए, राजगीर में इस बात को करते हैं, जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसमें आप लोगों ने शुरू किया। तो नालंदा विश्वविद्यालय का तो कहानी और राजगीर का कहानी तो सबको मालूम है ना, कितनी बड़ी चीज़। और नालंदा विश्वविद्यालय जो यहाँ पहले सबसे पहले बना हुआ था वो चला दिया गया, ख़त्म हुआ। लेकिन बाद में फिर जो हम लोगों के मन में बात आई कि साहब हम फिर से ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी है, इसको स्थापित करेंगे। जब हम लोगों को बिहार के लोगों ने काम करने का मौका दिया 2005 के 26 नवंबर से, तब से हम लोगों ने इन सब चीज़ों के बारे में सोचना शुरू किया। और इसके बाद 2007 में तो हम लोगों ने तय किया कि एक अंतर्राष्ट्रीय बनेगा और उसके लिए हम लोगों ने ज़मीन का आवंटन किया, सब कुछ किया। और हमने केंद्र सरकार से भी उस समय से लगातार आग्रह करते रहे कि भाई इसको करिए, आप लोग करिए, इंटरनेशनल होगा तो फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ इसका होना चाहिए। तो अंत में वहाँ पर भी हो गया और एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बनाने का जब निर्णय हुआ, हम लोगों ने पूरा सब चीज़ ट्रांसफ़र किया और पूरा सब चीज़ ट्रांसफ़र किया। उसके बाद तो जो हुआ, और इसका तो सबको मालूम है कि 16 में तत्कालीन राष्ट्रपति जी आए थे और उन्होंने इसका शिलान्यास किया था। और उसके बाद आज देख करके मुझको बड़ी खुशी हो रही है कि अब कम से कम कुछ काम तो हो गया, इतना बिल्डिंग बन रहा है। और हम तो बाद में आकर के इनसे बातचीत हो गई है साहिबा से, हम लोग आकर के देखेंगे कि और तेजी से कितना इसका और बढ़िया से काम हो जाए और तेजी से। और ये है अंतर्राष्ट्रीय, कोई नॉर्मल यूनिवर्सिटी नहीं है, ये सामान्य विश्वविद्यालय नहीं है। और जरा सोचिए ना कि जब वो यहाँ पर यूनिवर्सिटी था
तो उसमें किन किन राज्यों के लोग पढ़ते थे उस समय जब नालंदा विश्वविद्यालय शुरू वाला था, तो उसमें 10,000 स्टूडेंट पढ़ते थे। और इसी देश के नहीं, दुनिया के अनेक जगहों से लोग आकर के यहाँ पर पढ़ते थे। मैंने उस समय चाइना, कोरिया, जापान, तिब्बत, दक्षिणी पूर्वी एशिया में बौद्ध भिक्षु होते थे, और सब जो आते थे लोग यहाँ पर पढ़ते थे। तो ये अपना इसका बहुत बड़ा इतिहास है। और जब हम लोगों ने शुरू किया तो हम लोग भी चाहते यही है कि ये बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो, और इसके लिए जो कुछ भी करने की आवश्यकता हो वो सब किया जाए। और राजगीर में इसका चयन हुआ तो नालंदा तो आप जानते ही हैं, उसका जगह का ही नाम नालंदा है, नालंदा विश्वविद्यालय, और तो बर्बाद हुआ। तो उसके लिए तो जितना प्रयास किया गया, तो प्रयास करने के बाद तो यहाँ पर इसके लिए स्थल का चयन किया गया। तो अब तो ये सब चीज़ तो हो ही रहा है, और बहुत अच्छे ढंग से आगे भी काम हो। और चाइना ये इसको जो सोचा गया है राजगीर के बारे में, ये तो बड़ी पौराणिक जगह, बहुत पुरानी जगह, ये तो सबसे पुराना राजधानी। और ये मत समझिए कि कोई एक ही जगह की चीज थी। दुनिया का इतना बड़ा हिस्सा जो आज जिसको हम लोग देश अपना मानते हैं, इससे भी ज्यादा और कई हिस्सों का सबका कैपिटल यही था। और राजगीर से फिर बढ़ करके पाटलिपुत्र में। और कितनी बात थी इसमें, भगवान बुद्ध का क्या रिश्ता? जब भगवान बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के लिए ढूंढ रहे थे, तब यहाँ से गुजरे थे, तब भी यहाँ रुके थे। लेकिन जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया में, तो उसके बाद फिर वो अनेकों बार राजगीर में आते थे और यहाँ लोगों को उपदेश देते थे। तो ये कितनी कैसी चीज, भगवान बुद्ध का तो खैर है ही है, और भगवान महावीर का भी इसका बहुत बड़ा संबंध, उन्हीं दिनों के हैं भगवान महावीर। और खैर उनकी तो ज्ञान प्राप्ति हुई थी भगवान बुद्ध की यहाँ पर बोध गया में, लेकिन जो भगवान महावीर थे उनका तो जन्म भी हुआ, लेकिन उनकी मृत्यु भी यहीं पर बगल में पावापुरी में होगी। तो और जो अभी देखिएगा कि यहाँ पर जितना भी हम लोगों का ये जो पंच पर्वत इलाका है, और उसी के बीच में ये राजगीर का था, पुरानी राजधानी यही पंच पर्वत इलाके के बीच में सुरक्षित, सबसे पहले हजारों साल पहले की कहानी। और उसमें भी भगवान महावीर का भी देखिएगा तो ऊपर इतना ज्यादा उनका समूचा आप देखिएगा कि बहुत जगहों पर, चारों जगह पर देखिएगा कि मंदिर जितना ज्यादा है, सबसे ज्यादा मंदिर आपको यहाँ मिलेगा ऊपर। जब देखिएगा कभी जाकर के तो उन्हीं का भगवान महावीर की मंदिर मिलेगा। तो सब लोगों का संबंध यहाँ से रहा है। और आपको हम बताना चाहते हैं कि यहाँ पर तो अनेक लोगों का, कई लोगों का, अब जो जरासंध का अखाड़ा, मैंने कितना पौराणिक चीज को देखिए, सब यहीं पर है। और इसके बाद पूरे तौर पर जो एक महान सूफी संत मखदूम साहब, उन्होंने भी यहाँ अध्ययन किया, यहाँ के पर्वत पर भी बैठकर, और उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, ये 22 सालों तक यहाँ पर रह करके उन्होंने यहाँ पर अध्ययन किया था। और इसी इबादत स्थल के पास मखदूम कुंड भी अवस्थित है, और राजगीर में तो सब कुंड है ही है। तो आप सबको मालूम ही है कि एक एक चीज का यहाँ पर जो स्थित है। और गुरु नानक देव जी आए थे, अब गुरु नानक देव जी राजगीर में आए थे, तो यहाँ पर का तो सब तो गर्म कुंड है, शीतल कुंड उन्होंने स्थापित कर दिया। ये माना जाता है कि सब लोगों ने कहा कि भाई यहाँ पर का सब गर्म कुंड है, तो उन्होंने जो स्थल यहाँ पर रखा वहीं पर कुछ ऐसा किया कि शीतल कुंड हो। तो आज भी है, एक एक चीज को देखिए। और यहाँ पर राजगीर की क्या कहानी, हर 3 साल में क्या होता है यहाँ, आप जरा सोच लीजिए। ये माना जाता है कि यहाँ पर जो 33 करोड़ जो देवी देवता है, वो सब एक महीने के लिए यहीं पर आ जाते हैं राजगीर। सब एक माह तक जो प्रवास करते हैं, तो यहाँ पर मलमास मेला लगता है। कि राजगीर तो एक जगह ही है, अंतर्राष्ट्रीय राजधानी से लेकर के, शिक्षा से लेकर के, धर्म, सब चीजों को देखिए तो एक ऐसी जगह है। और इसलिए यहाँ पर जब ये यूनिवर्सिटी हो रहा है, हमको पूरा भरोसा है ये बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय होगा। दुनिया भर के लोग, स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ेंगे और फिर नए सिरे से उसको स्थापित किया जाएगा। हम लोगों की यही इच्छा है, ख्वाहिश है।
और आज के इस अवसर पर आप सब लोग आए हैं और इस जो कोरोना के बारे में आप लोग चर्चा कर रहे हैं, ये सचमुच बहुत खुशी की बात है। इस पर लेकिन बात तो यही करना ही पड़ेगा भाई कि ये जो जिस तरह से ये आर्टिफिशियल टाइप की चीज निकली है, नेचुरल नहीं है, तो इसका समाधान कैसे होगा? लोगों को हम किस तरह से गाइड करेंगे कि इस तरह की चीजों के चक्कर में मत पड़िएगा, प्रेम से रहिएगा, एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव हो, सद्भावना का भाव हो। तो इस तरह का एक माहौल बनना चाहिए। तो इस अवसर पर जो कुछ भी आयोजित किया है, हमारे आदरणीय माननीय उपराष्ट्रपति जी आए हुए हैं, उनको बोलना है, सब चीज़ों को यहाँ पर कहना है, तो आप लोग बहुत अच्छे ढंग से कीजिए और ऐसा करिए आप लोग कॉन्फ्रेंस कि इससे जो चीज़ निकले वो सचमुच अपने देश के लिए तो उपयोगी होगा, पूरे दुनिया के लिए उपयोगी हो जाए। इस तरह की बीमारियों से किस तरह से इसका लोगों का बचाव होगा। तो आज के इस अवसर पर आप सब लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं कि आप बैठ करके इन सब विषयों पर बात करेंगे। और आज आप यहाँ पर पधारे हैं हमारे आदरणीय उपराष्ट्रपति जी, उनका भी मैं विशेष तौर पर अभिनंदन और स्वागत करता हूँ सबको। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। Thank you, sir, for an inspirational address. It's our pleasure to invite Honorable Governor of Bihar to give his address. भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू जी, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, श्रीलंका के माननीय परिवहन मंत्री श्रीमती पवित्रा बन्यराची जी, नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुनैना सिंह जी, इंडिया फाउंडेशन के निदेशक श्री कटोच श्रीमती कुमार मंगलम जी, देश विदेश से आए हुए सभी अतिथिगण, द्वितीयजन, नालंदा विश्वविद्यालय के विद्यार्थीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण, देवियों सज्जनों, कोविड के बाद की वैश्विक व्यवस्था के निर्माण में धर्म परंपरा की भूमिका विश्व का छठा अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में शामिल होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि मैं नालंदा विश्वविद्यालय में आयोजित धम सम्मेलन में माननीय श्री उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी के देश विदेश से आए हुए सभी अतिथि एवं विद्वत प्रार्थी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन काल में उच्च शिक्षा और ज्ञान विज्ञान का केंद्र था, जहाँ देश विदेश के छात्र शिक्षा ग्रहण करने आते थे। इसके विध्वंस के लगभग 800 वर्षों के उपरांत विगत वर्षों में इसकी पुनः स्थापना तथा इसके बाद यह विश्वविद्यालय अपने गौरवशाली अतीत को फिर से प्राप्त करने हेतु प्रयत्नशील है। मुझे देखकर खुशी हो रही है कि नालंदा के एशियाई पुनर्जागरण और पुनरुत्थान के रूप में देखने का राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम का सपना साकार हो रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय विभिन्न देशों के साथ सैद्धांतिक संबंध स्थापित करने के साथ साथ ज्ञान के माध्यम से भारत से दुनिया के जोड़ने के लिए एक क्षेत्र का भूमिका निभा रही है। सार्वभौमिक शांति का स्थापना करने हेतु भारतीय एशियाई ज्ञान के माध्यम से नवीन अनुसंधान को प्रोत्साहित करने हेतु प्रयासरत है। साथ ही अपने अकादमिक संस्कृति के माध्यम से धर्म परंपरा को बनाए रखने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय ने अपने पाठ्यक्रम में भारतीय ज्ञान प्रणालियों के साथ साथ सनातन हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म अध्ययन का समावेश भी किया है। कोविड वैश्विक
महामारी ने हमारे जीवन को हर क्षेत्र को प्रभावित किया है, तो इसके हानिकारक प्रभावों ने हमें अपनी जीवन शैली को और सोच दोनों को विषय में सोचने और उनके पुनर्मूल्यांकन करने हेतु बाध्य किया है, ताकि विश्व में संतुलन, शांति एवं सद्भाव बना रहे तथा ये हम स्वस्थ और सुरक्षित रह सकें। आज विश्व की जिन समस्याओं का सामना कर रहा है, उनके समाधान में धर्म की क्या भूमिका हो सकती है, इस पर विचार करने हेतु आवश्यकता है। दुनिया के सभी सभ्यताओं और संस्कृति में धर्म का महत्वपूर्ण स्थान रहा है तथा विभिन्न धार्मिक सिद्धांतों और मान्यताओं के अनुसार हमारा आचरण, व्यवहार, सामाजिक, सांस्कृतिक, लोकाचार तथा जीवन के विभिन्न गतिविधियों के संचालित एवं नियमित होती रही है। दुनिया के विभिन्न धर्मों ने शांतिपूर्ण और अस्तित्व तथा सत्य, अहिंसा, प्रेम, मैत्री, अरुण, शांति, करुणा, शांति, ईमानदारी, निस्वार्थता, सभी जीवों के लिए प्रति आदर का भाव आज का संदेश दिया है तथा हमारे संतों और ऋषियों ने भी इन्हें अपने जीवन में अपनाने का बार बार उपदेश दिया है। धर्म की धारणा भी इस सिद्धांत को आधारित है तथा इस युग में से भारतीय लोकाचार के निर्धारण में लोगों को मार्गदर्शन किया है। कोविड के बाद विश्व व्यवस्था की उभरती हुई चुनौतियों से निपटने के लिए पूरब के अन्य धर्मों के साथ साथ हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म भी परंपराएं समग्र समावेशी रूप में कारगर एवं पर्यावरण, समग्र स्वास्थ्य की देखभाल, मानव केंद्रित विकास और मानव की गरिमा के लिए उपयोगी हो सकती है। वास्तव में धर्म परंपरा महामारी के कहर से उभरने और आगे बढ़ने के लिए व्यक्तिगत जीवन शैली के साथ साथ राजनीतिक और शासन के दोनों आकार देने से महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। ये परंपराएं एक खुशहाली और स्वस्थ भविष्य की नींव रख सकती है, जहाँ समाज और प्रकृति की सामंजस्यपूर्ण यह अस्तित्व बना रहे। आज आवश्यकता है इस बात की कि हम धर्म और धर्म की धारणा एवं उसके उपदेशों के तत्वों को आत्मसात करें और हमारे जीवन के अनुरूप हो। इसके लिए व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों स्तर पर गंभीर प्रयास किए जा सकते हैं, ताकि न केवल आने वाली समस्याओं से निपटा जा सके, बल्कि उन्हें रोकने के लिए सक्षम हो सके। मुझे जानकर खुशी हो रही है कि इस बार इस सम्मेलन का आयोजन ऐसे विषय पर किया जा रहा है जिसका उद्देश्य उन तरीकों और साधनों पर विचार करना है जिनके द्वारा धर्म परंपराएं उभरती हुई हैं, नई विश्व व्यवस्था के लिए एक नए दार्शनिक ढांचे के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। मुझे बताया गया कि यह 3 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में व्यापक चर्चा और परामर्श होंगे तथा दुनिया के विभिन्न हिस्सों के 150 से अधिक विद्वान अपने शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे। इस सम्मेलन के विषय वस्तु तथा निष्कर्षों से आम जनता भी अवगत हो सके तथा धर्म के सिद्धांत पर चलने तथा इनकी परंपराओं और उपदेशों का आत्मसात करने के लिए प्रेरित हो सके। इसके लिए आवश्यकता है कि हिंदी साहित्य विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं के सहज एवं सरल ढंग से इसका प्रचार प्रसार किया जाए ताकि वे आसानी से इन्हें समझा जा सके। मैं इस सम्मेलन के संयुक्त रूप से आयोजित करने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय और इंडिया फाउंडेशन को बधाई देता हूँ, जिन्होंने वैश्विक महत्व के मुद्दों पर विचार विमर्श करने एवं सामयिक मुद्दों को हल करने में सदियों पुरानी धर्म परंपरा को भूमिका में चर्चा करने के लिए विचार के शिविरों को एक मंच प्रदान किया है।
मैं इस सम्मेलन के समग्र सफलता की कामना करता हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय हिंद। ये है नालंदा होम टेलीविजन। आप देख रहे हैं नालंदा न्यूज।